Our greatest glory is not in everyone falling, but in rising every time we fall. With this beautiful quote, I wish a very good afternoon to everyone present here. It is my pleasure to welcome different placement coordinator, our chief guest, Ms. Gushish Kaur, BCA Management Department. It is our honor to be graced by the presence of such an accomplished personalities. Confidence in you help you to look your life in a positive way. It creates positive energy within you, improve your health, skin, decreases stress, and make you a wonderful personality. Today our college has organized a seminar on interview etiquettes. Interview etiquettes is the behavior, language and empathy that you deploy during a job interview. It is useful to use such etiquettes throughout the interview process as this encourages the interviewer to view you as a kind and trustworthy person. I would like to welcome Ms. Gushish Kaur on stage and request her to share her valuable words with us. Good afternoon, everyone. Okay, so today I'm holding a session on interview etiquettes for all of you. May I know which semester is sitting over here? Seven. All semester students. So my name is Ms. Gushish Kaur. I'm an assistant professor of management department from IMS. I also see their placements. So I was asked by your faculty to create a session on interview etiquettes for all of you. I'm under an idea that you people are going to appear for an interview sooner. Is that so? Okay. So day one, I think you had a PD session on introduction. Yesterday you had a session on group discussion. Today it's going to be about interview and interview etiquettes and different components of an interview. And tomorrow will be your mock interview if I'm not wrong. Okay. Has anybody over here has given an interview of any kind ever? किसी ने आज तक कभी कोई इंटरव्यू दिया है? किसी भी तरह का कोई एंट्रेंस को लेकर? I'm not sure कि इंजीनियरिंग में एडमिशन के वक्त इंटरव्यूज या पीआई कुछ होता है या नहीं होता है? नहीं होता है? फिर नहीं। आप बैक बता दीजिए, it's okay. You can take it out. It's going to take a little time. Am I audible without the mic? Yes, ma'am. Okay. Guys, you people are in your last year, and this year is crucial for all of you because sooner you would be passing out after 8th semester, and I'm thinking 8th में आप लोगों के projects होते हैं, so you will not be that very involved in the college activities and academics. This is also a time when most of you will be seeking out what to do. Some of you might be thinking about a job, some of you might be thinking about a business, whatever it might be. If job or placements are something that you are seeking, which I think you should, and definitely give it a try, at least sitting for interviews and understand what the marketers need. It's an important skill that you need to master. Now you might all be very good in academics, I'm not questioning that. You have been here in 7th semester, कोई प्रॉब्लम के बगैर आ गए हो, मतलब academics तो अभी डील कर ही लिया आपको. But there is something beyond academics that will definitely make or break a lot of things for you. Interview etiquette इसलिए समझाना important है क्योंकि ये पहला पड़ाव है जिसको आपको पार करके ही आप एक organization का part बन सकते हैं. Most of the time, a lot of interviewers or the organizations that come for placements, उनकी multiple rounds होते हैं for students. Initial आपका जो resume होता है, I'm hoping everybody has prepared a resume. अपना resumes बनाए हैं सबने? ठीक है. First thing first, and I'm pretty sure ये आप लोगों को idea है, आप biodata कोई नहीं बोलता. That's a very done with the term. Resume is the term. CVs usually also used instead of resume, but CV हम तब ज़्यादा बोलते हैं जब आपके पास experience भी होता है. CV can be a little more than one page. ठीक है? Resume आप दिखाते हैं, वो shortlist होता है. उसके बाद कुछ कंपनीज अपना फर्स्ट राउंड जीडीज रखते हैं, ग्रुप डिस्कशन, उसमें से शॉर्टलिस्ट करके देन पीआई, व्हिच इज योर पर्सनल इंटरव्यू, तब वो वन ऑन वन एक कैंडिडेट से बात करते हैं टू सी
whether this is a good fit or not. ठीक है, तो अभी हम लोग इंटरव्यू के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ना आपका इंटरव्यू जो है वो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज में ही होने वाला है, तो ये इन्वायरमेंट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू बिकॉज आपको ये इन्वायरमेंट फेमिलियर है. बट इंटरव्यू यूजुअली अगर आप वॉक-इन्स में जाते हैं, वॉक-इन मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर है वहाँ पर जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए एचआर को या उनके हेड्स को, तो वहाँ का इन्वायरमेंट आपके लिए एलियन होता है, अलग होता है. उस इन्वायरमेंट में अपने आप को उस पार्ट के लिए रेडी करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यूअर के लिए आपका वो पहला इंप्रेशन है. एंड यू डू नो फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन का दूसरा मौका नहीं मिलने वाला. आपको सेकंड इंप्रेशन में शायद कुछ चीजें ठीक करने को मिल रहे हैं, बट सेकंड मिलेगा तो वो आप चांस ले सकते हैं. समझ आ रहा है? इसीलिए इंटरव्यू को इतना अहमियत दी जाती है. तो ये जो मैं आपको एटिकेट समझा रही हूँ ये सिर्फ कॉलेज इंटरव्यूज या प्लेसमेंट्स के लिए नहीं है. इवन फर्दर आप अगर फिंगर्स क्रॉस्ड यहाँ से सेलेक्ट हो जाते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा दिए रहो, आप मूव ऑन करते हो, बेटर अपॉर्चुनिटीज देखते हो, तो वहाँ बहुत वॉक-इन्स होते हैं, यू माइट हैव टू गो देयर. तो उस एनवायरनमेंट में आप कैसे डील करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल. बेसिक बात करेंगे. इसमें डिफरेंट एजेंडाज हैं जो आपको पता होना चाहिए. इंपॉर्टेंस क्या है, प्री इंटरव्यू, ड्यूरिंग एंड पोस्ट. देयर आर सर्टेन वेज आप इन चीजों को डील करते हैं. अगेन प्लीज कीप इन माइंड वन थिंग, यहाँ सिर्फ कॉलेज प्लेसमेंट इंटरव्यूज की बात नहीं हो रही है, इन जनरल भी बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ही आपका काम खत्म हो गया ऐसा जरूरी नहीं है. यू माइट बी स्विचिंग आउट और उस टाइम पे कॉलेज में कैंपस में आके इंटरव्यूज नहीं होने वाले. So you have to keep in mind what works and what doesn't work for you. Okay. First of all, ये word etiquette सबने सुना है? Etiquette usually deals with protocol, how to behave. ऐसे बोलते हैं ना लोग, etiquettes usually deals with a protocol or how to behave, the rules regarding it. तो अगर हम interview etiquette की बात कर रहे हैं, तो usually interview में how to behave, what to do, what not to do, ये चीजें जो होती है, गाइडलाइन जो होती है, उसको हम interview etiquette के अंडर उस डेफिनेशन में रखते हैं. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको इंटरव्यू में सिर्फ बैठकर बोलना ये काफी नहीं है. देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है. समझ आ रही है मेरी बात? तो इसीलिए इंटरव्यू एटिकेट्स को हम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है. इसमें एक प्रोफेशनल बिहेवियर सिखाया जाता है, जो मैनर्स सिखाए जाते हैं, जो आप ड्यूरिंग द इंटरव्यू एग्जिबिट करते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यूअर आपको पर्सनली नहीं जानता, वो आपको पहले से नहीं पहचानता है. हाउ विल दे जज यू ड्यूरिंग दैट टाइम दे स्पेंड विद यू, यस और नो? एंड वो इंप्रेशन जो है वो खाली बोलने से नहीं होता. देयर इज 10 अदर थिंग्स जिनका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट. हाउ पोलाइट आर यू, हाउ कोर्टियस आर यू, डू यू हैव अ प्रोफेशनल अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये चीजें ध्यान में रखना. दे वांट द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट और उसके लिए थोड़ा ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है. तो आप जो बोल रहे हैं वो एक एस्पेक्ट है, आप कैसे दिख रहे हैं वो दूसरा एस्पेक्ट है, और तीसरा आपका जो बॉडी लैंग्वेज है दैट विल आल्सो मेक अ लॉट डिफरेंस फॉर यू. समझ आ रही है मेरी बात? ओके, सो इंपॉर्टेंस, व्हाई इंटरव्यू एटिकेट्स आर सो इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इंप्रेशन आपने खुद बोला, इट्स कंसीडर्ड टू बी अ लास्टिंग इंप्रेशन. आप पहले बार जब किसी को मिलते हैं, दैट इंप्रेशन विल मेक और ब्रेक ऑफ हाउ यू परसीव दिस पर्सन. नाउ गिवन द फैक्ट कि यस देयर आर चांसेस कि आप अपना इंप्रेशन अगर इतना अच्छा नहीं रहा है तो आगे के टाइम में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, बट दैट चांस लकी वंस को ही मिलता है कि वो सेकंड चांस में अपने इंप्रेशन ठीक कर सके. बट फॉर इंटरव्यूज देयर फर्स्ट इंप्रेशन विल मेक दैट इनिशियल मोमेंट्स जो है वही आपका इंप्रेशन बेटर या वर्स डिसाइड करेंगे उनकी आंखों में. आप इसमें पढ़ते हैं इंटरव्यू एटिकेट्स क्योंकि सिंपल चीजें जब आप रूम में एंटर कर रहे हैं, डिड यू टेक परमिशन और नॉट, दैट मैटर्स. जब आप उनके सामने बैठे हैं, आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट. आपने हैंडशेक किया, कैसा हैंडशेक था, दैट मैटर्स अ लॉट. ये सब हम लोग आगे इसलिए पढ़ते हैं एटिकेट्स में बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें आपके पूरे इंप्रेशन में कंट्रीब्यूट करती है. समझ आ रही है बात? क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझाना. उसके बाद आपका डिमीनर कैसा है, डिमीनर समझते हैं. ओवरऑल व्हाट डू यू प्रोजेक्ट, डू यू हैव अ पॉजिटिव डिमीनर, do you have a negative demeanor? Now we know a lot of people in our lives who have a habit
कि वो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। उनके कमरे में एंटर करते ही यू जस्ट फील कि समथिंग इज गोना हैपन। व्हाई? बिकॉज दे exude this kind of a demeanor. Now this demeanor that you have to work on yourself, reason being your demeanor will also give them a future reference of when you join the organization, if and when you join the organization, how would you impact the teams or the other employees. A negative demeanor candidate would not be suitable. समझ आ रहा है मेरी बात? तो इसीलिए demeanor, आपका body language, how do you perceive situations, ये चीजें भी important है एटिकेट्स में पढ़ना। उसके अलावा इंटरव्यूअर्स पे कैसे पॉजिटिव इंप्रेशन बनाते हैं वही एटिकेट्स में सिखाया जाता है, क्योंकि यू वांट टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। लिसन, द इंटरव्यूअर्स हैव जस्ट फ्यू मिनट्स टू बी विद यू। आपके पास भी उनके साथ सिर्फ कुछ मिनट्स हैं। अब उस छोटे टाइम पीरियड में आप जितना अच्छा इंप्रेशन बनाओ, उतना पॉजिटिव बनाओगे, उतना बेहतर होगा, बिकॉज इन द सी ऑफ कैंडिडेट्स यू विल बी द वन दैट विल स्टैंड आउट एटलीस्ट इन देयर मेमोरी। समझ आ रही है मेरी बात? So that's why that positive impression is completely important. Now, important thing for etiquettes to be studied is how to bring out professionalism and respect in your conduct. Sadly, I've seen this happening a lot. Students, specifically in college placements, they are sometimes extremely unprofessional in their conduct. When I say unprofessional, they don't know when to sit, how to sit, how to talk. There is a hierarchy you have to understand. Someone who is older than you, someone who teaches you, someone who is going to decide your career, you have to give them some certain amount of respect and professionalism to deal with. But sadly, because the generation thinks that everything can be considered casual, that's where it becomes problematic for them. Because there are certain settings जहाँ बहुत ज़्यादा casual attitude काम नहीं आता है। प्रोफेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म अगर आप आज थोड़ी सी दिखाएंगे, ये उनको फ्यूचर में डिसाइड करने में हेल्प करती है कि व्हेन यू गो टू योर कॉर्पोरेट आप वहाँ पर इजी वे में सेटल हो सकते हैं। क्योंकि आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वायरमेंट और कॉलेजेस का इन्वायरमेंट अलग होता है। यहाँ आप स्टूडेंट हैं, वहाँ आप एम्प्लॉय हैं, यू आर एन अडल्ट ओवर देयर, दे एक्सपेक्ट यू टू बिहेव लाइक वन। यहाँ बंक कर लिया, फाइन, कॉलेज एक्सपीरियंस है। वहाँ डेस्क से कहीं भाग गए, नो, दैट्स हाउ इट वर्क्स। यहाँ फ्रेंड्स के साथ प्रैंक कर लिया, फाइन, कॉलेज में होता है। उधर एम्प्लॉय के साथ यू विल बी सूड, नेक्स्ट डे यू विल बी सूड, नो, यू कैन डू दैट। तो आपको अपना एक पर्सनल प्रोफेशनलिज्म कंडक्ट में थोड़ी देर के लिए लाना ही पड़ेगा, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए यू विल बी अ गुड फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड it actually helps you being a little different from all the candidates out there. परसों आपका इंटरव्यू है और one company is coming, right? वो कंपनी जो भी आ रही है, आप सबको अगर वो इंटरव्यू में बैठ रहे हैं आप लोग, मुझे pretty much लग रहा है कि academic qualification सबकी सेम है, academic understanding भी pretty much सबकी सेम है। आप लोग 7th सेमेस्टर में हो, सेम कॉलेज में हो, सेम स्टूडेंट टीचर से पढ़ते हो, तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन ज़्यादा नहीं होने वाली। अब फर्क कहाँ पड़ने वाला है, डिफरेंशिएशन कहाँ आने वाली है? इट्स एक्चुअली योर कंडक्ट ओवर देयर दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड। एकेडमिकली डिफरेंशिएशन, सेम बैच के स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू दे रहे हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा 19-20 का फर्क पड़ेगा। किसी ने एक एक्स्ट्रा कोर्स कर लिया, ठीक है, किसी की थोड़ी सी उस सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है, ठीक है, गेट। और व्हाट एल्स, देयर हैज टू बी समथिंग दैट makes you stand out. वो differentiation etiquettes की वजह से आता है। Would you mind आप तो हाईटी में होंगी। Okay, when was it founded? किसी को आइडिया है? Who's the current head CEO or the owner of the company? You're talking about him as if he's your friend. You need to know the full name. When was it founded? Anybody has an idea? This यहाँ सबसे पहली गलती, the companies that come, you need to know their public information well. जो कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में जब आपको कुछ पता नहीं होता है, या बहुत ये जो लाइन आप मुझे सुना रहे हैं, ये आई एम प्रीटी श्योर जो आपके मैसेज बन के आया होगा, और उसमें लिखी होंगी चीजें, तो वही आपने मुझे बता दो।
अब मैं अगर थोड़ा डीप में पूछूंगी नहीं पता चलेगा क्योंकि किसी ने रिसर्च नहीं की उसको, किसी ने गूगल करके देखा वो कंपनी क्या है, एनीबडी इवन ट्राइड गूगलिंग? यहाँ सबसे पहला आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। प्री इंटरव्यू में कंपनी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। रिसर्च द कंपनी। When you research the company, because you have a great tool of internet, you find even employees on the Google, on web and on forums sharing their experiences. Sometimes you get a lot of insight about the company, what kind of people they want to hire. Are you getting my point? तो पहली गलती तो आप लोग कर चुके हैं। दूसरा, what is the role or the job designation they are offering? Do you know? What's the job designation? नो आइडिया। किसी ने अपने आपके टीचर से जाके पूछा मैम जॉब क्या है, हमारा पोजीशन क्या है? किसी ने पूछी? खुद पूछी? क्या इंटरव्यू देखने जा रहे हो आप जब रोल ही नहीं पता आप किसके लिए प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं? गाइस वो वहां जाकर आपसे एबीसी नहीं पूछने वाले। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो आपसे शायद टेक्निकल क्वेश्चंस कुछ बहुत नॉर्मल पूछेंगे जिनको पता आपको आते हैं, बट दे आर गोइंग टू they would want to know the person beyond this resume. They would love to know that. But role के बारे में तो आपको clarity होनी चाहिए कि what is the role that you're interviewing for. Intern role है, I'm so sorry मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूँ तो मैं नहीं बता सकती यहाँ जॉब पोजीशंस क्या होती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है, what type of role it is पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि ज़्यादा बॉदर नहीं किया। अगर आपको मैसेज में क्लियर नहीं था आपका जॉब पोजीशन क्या है, डिड एनीबडी बॉदर टू आस्क योर टीचर्स और योर टीपीओ जो जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है, एनीबडी व्हाट्सएप करके ही वो पूछ लो सर जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मैम जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मुझे बता दीजिए मैं प्रिपेयर करूँगा। बिगेस्ट मिस्टेक। तो आज आपका काम है घर जाकर अपनी कंपनी रिसर्च करना, उसको गूगल कर लो, वेबसाइट्स हैं उनकी। समझ आया? So that is very important. Do that no matter what. Okay. The other step that you want to do is prepare common interview questions. मैंने वो questions लास्ट में लिखे हैं, हम उसके साथ उसको देखेंगे कि क्या क्या questions पूछ सकते हैं। पहली चीज, दो हिस्सों में questions को बांट लो, एक टेक्निकल, दूसरे नॉन टेक्निकल। टेक्निकल क्वेश्चंस आपके एकेडमिक से रिलेटेड है, रोल के रिलेटेड। दैट्स व्हाई मैंने कहा रोल प्लीज जानिए कि किसके लिए आप किस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उस रोल में जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो क्वेश्चंस आपको आएंगे। अब वो फर्स्ट सेमेस्टर से भी पूछ सकते हैं, फोर्थ से भी पूछ सकते हैं, फिफ्थ से पूछ सकते हैं। ये मत सोचना सेवंथ सेमेस्टर की कोई बुक लेके देख लिया तो हो गए, नहीं। दे एक्सपेक्ट यू कि आप फर्स्ट सेमेस्टर पास करके आए हैं, पास करके आए ना सारे, तो आपको ऑनलाइन पास किया, ऑफलाइन किया, पास किया है। अब अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपको आता होगा, तो दे आर गोना आस्क यू बेसिक्स, बेसिक्स के ऊपर भी वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपका टेक्निकल में हाथ अच्छा है वो आपको एक लेवरेज ऑलरेडी दे देते हैं। दूसरे आ गए नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस, जिसमें आपको वो आप कैसे इंसान समझना इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज इफ दे थिंक दैट यू हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट जहाँ पर आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे, उनसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस, you would be the one who will be not in a good position, to be very honest. Effective listening बहुत important है। Hearing और listening में फर्क होता है। कभी ये बात पता है? पढ़िए। Hearing is just सुनना, listening is सुनकर। That is very important. When you know the person is talking, give them the respect that they finish it up, and then listen to what they've asked and answer accordingly. एंड कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जिस वे में आपसे बात कर रहे हैं आपको उसी वे में उनको जवाब देना इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? ओके। पोस्ट इंटरव्यू एटिकेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। एक्चुअली क्या है, इंडिया में और जम्मू में तो बहुत रेयर है, बट जब भी हम लोग टीपीओज में या हमें बाहर के कॉलेजेस में इंटरव्यू एटिकेट्स सब सिखाए जाते हैं तो ये भी चीज़ को थोड़ा तवज्जो दिया जाता है, जहाँ पर अगर आप एक वॉक इन में जा रहे हैं, एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं, वहाँ पर बहुत बार पोस्ट इंटरव्यू एटिकेट में थैंक यू ईमेल भेजना
मैंडेटरी होता है। जम्मू कश्मीर में मैंने अभी चलन नहीं देखा है, ये इतना ट्रेंड नहीं है, बट आप लोग जब ऑर्गेनाइजेशन में खुद से जॉब्स करेंगे, जब खुद इंटरव्यूज देने जाएंगे, आई स्टिल वांट यू टू डू दिस प्रैक्टिस। Once you're done with the interview and you leave, after that, please send a thank you email within 24 hours. Email needs to be professional. Thank you so much, take care. There has to be a respected or a sir, and then a full body, and then thank you, regards. The whole, बचपन में एप्लीकेशन लिखी हुई है ना, लेटर्स लिखे हुए हैं, वो ऑफिशियल लेटर ईमेल में कन्वर्ट कीजिए, वो भेजना इंपॉर्टेंट है। उस ईमेल में एक्सप्रेस कीजिए अपना ग्रैटिट्यूड कि यू आर वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी आपको इंटरव्यू की, समझ आ रहा है, एंड शो कि आपका इंटरेस्ट है उस पोजीशन में अभी भी, समझ आया। ये आप कॉलेज प्लेसमेंट के इंटरव्यूज के लिए नहीं कर सकते, लेकिन बाद में आप जब इंटरव्यूज देंगे, ट्रस्ट मी, दे विल रिमेंबर यू इवन मोर कि यू हैव टेकन टाइम टू डू दिस और सेंड एन ईमेल फॉर दैट। नाउ अब हम मूव करते हैं कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यूज। पहला है लैक ऑफ प्रिपरेशन, तो मैं समझा चुकी हूँ। कंपनी, रोल, मॉक इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने टेक्निकल पार्ट को प्लीज ब्रश अप कीजिए। प्रिपरेशन नहीं करेंगे, वहां जाकर चुप ही होंगे, जो भी वो पूछेंगे इधर यू विल बी क्वाइट और इधर यू विल बी टेलिंग देम स्टोरीज एंड दे डोंट वांट टू नो स्टोरीज। उन्होंने इतनी इंटरव्यूज दे दिए हैं कि वो आपकी स्टोरीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम एन एक्चुअल आंसर। पुअर पंक्चुअलिटी, be on time, I am reiterating it again and again and again, and please don't do it क्योंकि इंटरव्यू है, नहीं, in life make that a habit. The more you make it a habit, the more it will be easier for you to deal with it. तो जितने लेट लतीफ हैं यहाँ पर, अलार्म लगा लीजिए, किसी फ्रेंड को बोल दीजिए उठाने के लिए, पर टाइम पे हर इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, नो मैटर व्हाट। इनफैक्ट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, टाइम पे अपने काम पे पहुंचना है। नाउ यू आर अ स्टूडेंट, टाइम पे अपनी क्लासेस पे पहुंचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Inappropriate attire. After this slide we have dress code also. Dress code is extremely important in a professional setting. Now good for you, placements में आपका dress code uniform होती है, because you have a professional uniform anyway for girls and guys both. But when you do move to another organization and college uniform पहनने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आप formal attire में जाएंगे। Formal attire का मतलब है whatever in the culture is expected और is accepted. US में अलग कल्चर है अटायर का, इंडिया का अलग मतलब कुछ चीजें अलग हैं, तो वहाँ पर एक्सेप्टेबल क्या है दोनों जगहों पे, वो इंपॉर्टेंट है। अपने एरियाज में कौन कौन सी एक्सेप्टेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ड्रेसअप करना इंपॉर्टेंट है। इनअप्रोप्रिएटली ड्रेस होके जाएंगे तो यू विल हैव द वर्स्ट टाइम एवर, बिकॉज दे डोंट शाई अवे फ्रॉम टेलिंग यू व्हाट द हेल। सम ऑफ देम विल टेल यू प्लीज लीव, चप्पल पहन के निकल जाना, लोअर्स पहन के निकल जाना, बाल ऐसे सुट के निकल जाना ना, इट टेक यू फुल स्कैनिंग पूरी होती है ऊपर से नीचे तक। बॉडी लैंग्वेज, गाइस बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जब मैं आप लोगों को सेशन दे रही हूँ, आपके बैठे हुए बॉडी लैंग्वेज में मैं डिसाइफर कर सकती हूँ कौन सुन रहा है, किसको फर्क नहीं पड़ता, किसको नींद आ रही है और कौन यहाँ से जल्दी जल्दी भागना चाहता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो जितने स्टूप होके बैठे सीधे हो जाइए, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, सब हाँ स्ट्रेट होके बैठिए। बॉडी लैंग्वेज विल आल्सो गिव देम एन आइडिया। बॉडी लैंग्वेज जो है नॉन कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है। कम्युनिकेशन में आप लैंग्वेज यूज करते हो, बॉडी लैंग्वेज इज यूजुअली हाउ यू आर कंडक्टिंग योरसेल्फ। आप अगर चेयर पे बैठे हैं, स्टूप होके बैठे हैं, तो अनइंटरेस्टेड, अनप्रोफेशनल, वेरी कैजुअल, अंदर आ रहे हैं, परमिशन नहीं लिया, बिल्कुल ऐसे गुंडों की तरह चल रहे हैं, बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बॉडी लैंग्वेज है। यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द, यू डोंट सी योर एनवायरनमेंट अराउंड यू, यू डोंट विश पीपल, दैट्स पार्ट ऑफ द वीक बॉडी लैंग्वेज। नहीं फर्क पड़ता। वीक का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप बिल्कुल आप डरे हुए, नहीं, वीक का मतलब है जो अनप्रोफेशनल है उसको भी हम वीक बॉडी लैंग्वेज मानते हैं। एंड यस, इसके भी अपने नंबर होते हैं। इफ यू गोना एक्ट लाइक यू डोंट केयर, they will also not care at the end of the day. So when you care, you make sure your body language is in line with what they think is important. Negativity, again, एक negative demeanor होगा तो that will not be considered. हर चीज में अगर आप गलत चीजें perpetuate करेंगे और अपने आप को victim दिखाएंगे,
that will not be accepted. Over-emphasis on salary. When you talk too much about money, then you become one of those candidates जिसको सिर्फ पैसे से मतलब है, उसको काम या अपनी contribution से कोई मतलब नहीं है. That is also considered a little unprofessional to do. Yes, you need to talk about salary, but in a professional way. Not नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे दो, मुझे अभी चाहिए, नहीं करना. Don't do this. Incomplete knowledge. Lack of preparation की वजह से knowledge भी incomplete होने वाली है. This is going to create problem for you. Lack of questions. Okay. A lot of interviewers ask at the end, do you have any question for me? They do ask you that. उस टाइम पे एक या दो क्वेश्चन रखना चाहिए अगर वो पूछते हैं. For example, you can ask them, sir, what does this role actually entail? ये रोल जो आप मुझे ऑफर कर रहे हो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ये क्या इंटेल करता है सच में? ये एक क्वेश्चन हो सकता है. दूसरा, ड्यूरिंग माई इंटरव्यू डिड यू थिंक कि मेरे में कोई लैकिंग है? प्लीज डू एक्सप्लेन इट टू मी कि आई कैन मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम आई कैन इम्प्रूव इट. इससे पता क्या पता चलता है कि आपने अपना इंटरव्यू सिंसियरली दिया और आप जेन्युइनली चाहते हैं कि वो आपको कोई फीडबैक दे. तो ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखने चाहिए. दे फील कि यू आर कनेक्टिंग विद देम. टॉकिंग टू मच और टॉकिंग टू लिटिल. किसी को स्टोरी नहीं सुननी है पर किसी को साइलेंट प्लेयर भी नहीं चाहिए. टॉक एडिक्वेटली. जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दो, पर इतना दो कि वो क्लैरिटी हो जाए. कम बोलोगे ज्यादा बोलोगे दोनों प्रॉब्लमैटिक है आपके लिए. नॉट टेलरिंग रिस्पॉन्सेस. जो पूछा गया है उसका रिस्पॉन्स दो और प्रिसाइसली दो. अगेन कहानियां नहीं सुनानी है. जितना डाइग्रेस करोगे उतना आपका इंटरव्यूअर भी बोर होगा. मिस रिप्रेजेंटेशन. गलत चीजें नहीं बोलनी है. अपने रेज्यूमे में कोई गलत चीज नहीं ऐड करनी है जो सच में नहीं है और आपने सिर्फ बढ़ाने के लिए डाल दिया है, और अपने बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, उसके साथ साथ आपको ब्लैकलिस्ट कर सकता है. ना ही सिर्फ कंपनी से, समटाइम इंडस्ट्री से. अगर ऐसी कोई मिस रिप्रेजेंटेशन है जो आपके हायरिंग के लिए बहुत अहम थी पर आपने गलत बताई है, ये झूठी बताई है, वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है. सो डोंट डू दैट. एंड लैक ऑफ एंथुसियाज्म. एंथुसियाज्म नहीं है, आप ऐसे जा रहे हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता या आप पहले ही डिफीट मान चुके हैं, तो वो भी आपके लिए एक नेगेटिव चीज काउंट. नेक्स्ट वन इज ड्रेस कोड. नाउ वी स्टार्ट विद द मेल कैंडिडेट्स. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको ध्यान रखना. नहीं पढ़ा जा रहा है, मैं बोल के सुना देती हूँ. सो वो मेल कैंडिडेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए बिजनेस सूट्स जो है सबसे ज्यादा प्रोफेशनल माने जाते हैं. बट सूट में कोट्स are not 100% all the time important. A shirt and a pant, that formal attire can also work. Well fitted होना चाहिए. Please do not wear fancy or very bright colors. Keep it as muted as possible. तो आप अगर darker colors or navy, grey, blacks and browns, that's much better because it seems professional. Sleeves, full sleeves, half sleeve नहीं चाहिए. Okay, and please keep it conservative. सूट, बिजनेस सूट पहन रहे हो, ऊपर डोनाल्ड डक के वो प्रिंट बना हुआ है, doesn't look nice. You need to keep it as professional, as muted as possible. Footwear. ये चीज तो मुझे ज्यादा समझानी है. I have seen students walk in interviews with chappals, and that is so disrespecting. Chappals and sandals में आ रहे हैं. लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ. लड़के आ रहे हैं. क्यों? आप लोगों को किसी ने समझाया नहीं है कि क्या फॉर्मल होता है, क्या फॉर्मल नहीं होता है. बाय अ गुड ब्लैक शू. शू का मतलब क्या होता है? जूता. कौन सा जूता? हाँ जी, कौन सा जूता? देखिए, आपके पास जितने जूते हैं वो सारे एक समान नहीं है. The shoe that we consider as a shoe, formal shoe, are the ones that are either leather or patterned, the PU leather ones that has laces in them. And then you have the other one that you can slip it on, but then again that has to be not your loafers or moccasins, वो नहीं हो सकते. Again black brown leather वाले ही जो बिना laces के slip-ins होते हैं वो भी allowed होते हैं. But the laces shoe, not sneakers, not sport shoes, the leather shoes, browns and blacks में होते हैं. आप सबने देखे, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ. उन्हीं को प्रोफेशनल माना जाता है. एनीथिंग एल्स, सैंडल पहन के आ रहे हैं, लोफर्स, फ्लोटर्स, ये नहीं अलाउड होते.
घर की चप्पल पहनकर आ रहे हैं, नहीं अलाउड होती। They will tell you to leave then and there. So footwear is very important. Grooming, ये भी लड़कों को समझाना बहुत important है। आज देखकर भी लग रहा है कि समझाने की बहुत जरूरत है। Longer hair, no. Fluffier hair, no. For that matter, there are certain companies that have a strict policy with beard and moustache also. Except religious reasons, they don't accept beards and moustaches. Most of your friends, elder brothers who might be working, सब इस टाइम पे clean shaven हैं, office जाना, offices में allowed ही नहीं होता. So your unruly beard and moustaches pretty much bye करना ही पड़ेगा एक पॉइंट के बाद. हाँ, exception सिर्फ religious reasons के वजह से मिलती है. सिख कैंडिडेट्स को अलाउड होता है क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ देयर कल्चर, सो दे कांट टेक इट ऑफ. बट उसके अलावा दिस कांट बी. हेयर फॉर मेन, आई थिंक मेन in the past few years are getting worse with their hair, especially with interviews. I don't know what is happening. I've seen someone coming with dreads, someone coming with I don't know what do you call the braids. Someone has such a big I don't know what it is. Bouquet बना होता है पूरा यहाँ पर. They are not taking care of grooming. Guys, मैं जो आपको चीजें समझा रही हूँ, आपको हंसी जरूर आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. They will tell you to leave because they don't think you're appropriately dressed. परसों ये हरकतें मत करना. जब मैं beard और mustache के लिए अभी मैं नहीं कह सकती, but अपने बाल, ये जितने यहाँ पर हैं, please बालों का ध्यान रखेंगे अपना. Unruly hair will not be accepted. Grooming में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फेशियल हेयर को प्लीज मेंटेन करके रखें तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. उसके अलावा इफ यू आर एक्सट्रीमली fond of perfumes, please keep it as minimum as possible. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहाकर नहीं आया तो पूरा बॉटल छिड़क दिए. Don't do that. Dress code, grooming is very important. मैं बार-बार बोल रही हूँ. Everything is important. And accessories में boys please only your watches. अगर सलमान खान वाला ब्रेसलेट है उतार दो. सिल्वर गोल्ड चेन्स हैं उतार दो. अगर आपके बॉयज में स्पेशली इफ यू आर वेयरिंग इयररिंग्स, take it off. Earrings, chains, bracelets, anklets, I don't know. Maybe you like to do it. Take it off. The only thing they allow are kadas. Kadas because of religious reason की वजह से kadas still allowed. If you are wearing 10 अंगूठियाँ, please keep it as minimum as possible. You do not have to give them an impression कि you are unprofessional. This is important. मैं बार-बार बोल रही हूँ. एक्सेसरीज में ज्वेलरी लड़के अवॉइड करेंगे. टाई, वॉच, इनफ. दैट्स इट. पेन लगाना है यहाँ पर, इनफ, उससे ज़्यादा नहीं. फॉर फीमेल कैंडिडेट्स दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. आप लोगों को भी चीजें समझनी पड़ेगी. व्हेन यू गोइंग फॉर अ प्रोफेशनल इंटरव्यू, हाउ डू यू ड्रेस अप मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. देखिए फर्स्ट इंप्रेशन में ड्रेस कोड में आप लोगों के लिए भी सर्टेन ड्रेस कोड्स हैं जो डिसाइडेड है. पहली चीज क्या है कि लड़के और लड़की दोनों को मैं बता दूं, जीन्स आर नॉट फॉर्मल. जिनको गलतफहमी है मैं अभी क्लियर कर देती हूँ. जीन्स आर नॉट फॉर्मल. पैंट्स yes formal. Your lowers not formal. Please keep that in mind. For girls, a suit, a business suit or an ethnic suit is acceptable. Sarees are acceptable in India. आपका सूट you have your business suit भी बोल सकते हो, जो ethnic suit होता है that's allowed. Business suit में अगर business suit पहन रहे हैं तो coat and a pant and a shirt is the business suit for girls also. उनका भी similar equivalent होता है, वो allowed होता है. You need to understand footwear is also important. Do not wear a lot of long heels. Bigger heels are not acceptable. वो casual लगता है. Please wear manageable heels. ठीक है? I get it. Some of you might need them, but you do not need to have really big heels because they can get uncomfortable for you and they are considered to be extremely unprofessional. So keep it as minimum as possible. Okay? Keep it closed-toed. So ballerinas, bellies, pumps are still fine. If you can get female business suit, shoes, sure, but open toes and sandals are not allowed. Sandals are casual, again similar for men.
Grooming, neat and clean hairstyles. If you're wearing open hair, clutch it up, halfway, full, buns, plaits, they are all acceptable. But do not do a hairstyle that is considered unprofessional or unmanageable for you. That is very important. Okay? Accessories, keep minimal jewelry. Minimal. Minimal का मतलब होता है कम से कम. कम से कम jewelry. Earrings, sure. Studs are acceptable. Chains, very thin chain or no chain will be better. If you're wearing bracelets, please make sure they're not clunky. Clunky मतलब जो आवाज करे. Watches are more important and anklets को avoid कीजिए. ये जम्मू में मैंने देखा है. And छन 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 interviews में चल रहा है. No anklets, no bracelets also avoid. Your watches are enough. Nails, keep it minimum. Boys, cut your nails. खा लो, काट लो, जो करना है, cut your nails. Girls, keep it at a minimum length. You do not want big ones. नहीं चाहिए. Keep it as minimal and as professional as possible. Okay? समझ आ गया यहाँ तक? Now, non-verbal communication में क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है? Confident posture. Keep your posture straight. Look them in the eye. Execute that confidence. Firm handshake. Handshakes. ये हैंडशेक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हैंडशेक डिटरमिन करेगा कि whether you are scared of this person, you're glad to meet that person, or you think you are better than that person. A firm handshake doesn't need to be too tight कि it makes it difficult for them. It doesn't need to be too limp कि ये unprofessionally हुआ है. It needs to be just right. A firm handshake is important. Eye contact. Looking down, looking up, looking side while answering the question. No. It's disrespectful to your interviewer. Look straight in the eye, but not like staring at them. Don't do that. Smile. Smile a little bit. Don't give a creepy smile. Smile when it's appropriate to smile. That is very important. Gestures. Some of you might have a not problem, but a habit of using your hands while talking. That's fine. कोई problem नहीं है. मैं भी use करती हूँ. But don't get too over dramatic about it. और बिल्कुल हाथ पीछे पड़क के नहीं बात करनी. वो भी नहीं करनी. You need to be as natural as possible. Active listening. When they're talking, you need to nod or at least let them know that you're listening to them what they're trying to tell you. Crossing arms. Do not still sit like this. This is not a good body language. This is considered कि आपका और मेरा मैं कोई communication इसके आगे नहीं आने दे रहा. You're blocking that active communication. Maintain a neutral facial expression. Don't be too happy, don't be too sad, or don't look too angry. Keep a neutral facial expression as much as possible. Space management. Do you understand space? There is something called a personal space. हर इंसान की अपनी पर्सनल स्पेस होती है जो आप अपने इर्द गिर्द एक लाइन ऐसे इंडिविजुअल चाहिए. Someone who tries to talk to you like this, you have to go like this कि you are invading my personal space. That is very important even during interviews. How close do you get to the interviewer or how far you sitting? वो सेंस होनी चाहिए. जहाँ चेयर लगी है ठीक है, I understand. But there are certain times वहाँ multiple chairs होती हैं. What do you think is appropriate? आप वहाँ जाके बैठिए जो आपको एक normal space लगती है. Reason being, if you're too far away, that's also considered to be non-interested. If you're too close, that is considered you're invading their privacy or invading their personal space. तो वो space management में होनी चाहिए. अपने movement में confidence होना चाहिए. जब आप चल के अंदर आ रहे हो, उठ के जा रहे हैं, move confidently. भागते ही नहीं जाना. Hang on, खत्म हो गया, चलो मैं निकलते. नहीं, don't do that. You need, until unless you're out of the room, show that you're confident enough that you think that everything is gone good. Enthusiasm show कीजिए कि आप खुश हैं वहाँ आकर. दुखी नहीं है, आपको जबरदस्ती नहीं लाया गया. You wanted to be there. That enthusiasm has to be there. And post interview जैसे मैंने ये अभी बोला, departure. जैसे आप depart कर रहे हैं वो भी important है. Some people have a very good habit when they get up, they never show their back. They always go like this. That they don't show their back. They have a habit of doing it because they find that disrespectful to the person who's looking at them. Okay, and pacing and timing. आप कब बोल रहे हैं, कब रुक रहे हैं, वो pacing आपको आनी चाहिए. कि दूसरा इंसान शायद बोलने की कोशिश कर रहा है और आपको रुकना पड़ रहा है, वो टाइमिंग आपको ध्यान में होना चाहिए कि if sometime interview wants to pitch in, वो कुछ कहना चाहता है और आपको दिख रहा है, then you might have to stop. तो start stop की pacing आपको खुद समझ आनी चाहिए.
एंड द लास्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है डिफरेंट क्वेश्चंस, नॉन टेक्निकल। टेक्निकल मैं नहीं पढ़ा सकती, पर मैं नॉन टेक्निकल बता सकती हूँ जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये तो आपको फर्स्ट सेशन में इंट्रोडक्शन में बताया है। इसमें अपने बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन, एकेडमिक्स का थोड़ा सा कंसाइज, प्रिसाइज इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वो पॉइंट्स हाईलाइट करो जो आपको दैट मेक्स यू लुक अ लिटिल गुड। ओके, व्हाट मोटिवेटेड यू टू चूज योर करंट फील्ड ऑफ स्टडी? आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या सिविल में हैं, कंप्यूटर्स में जाओगे, क्यों कर रहे हो? व्हाट वाज द रीजन, व्हाट इज द पर्पस? मम्मी पापा ने कहा इज नॉट अ रीजन। ओके, सो फॉर्मुलेट एन आंसर दैट माइट इंप्रेस यू, बट डोंट गो ओवरबोर्ड आल्सो। कोई YouTube से कोई फिल्म का डायलॉग उठा के नहीं मारना, प्रोफेशनल आंसर देना। Can you describe challenging academic project you worked and how come you overcame that obstacle? ये यूजुअली क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? ये देखने के लिए कि अगर आपके एजुकेशनल करियर में कोई अगर प्रोजेक्ट ऐसा आया जो आपको डिफिकल्ट लगा, आपने उसको कैसे हैंडल किया, ये जानने के लिए कि आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे तो कैसे हैंडल करोगे। आपको एक क्रूशल ये क्राइसिस हैंडल करना आता भी है या नहीं आता? पढ़ाई आती है लेकिन क्राइसिस हैंडल करना नहीं आता है, वहां ये आंसर आपका मेक एंड ब्रेक करेगा। व्हाट स्किल और स्ट्रेंथ्स डू यू पोसेस? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस वो पूछते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। गाइस, ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं बतानी है जिसका उस जॉब से कोई लेना देना नहीं। मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, आपने वहां पर जाके डंबल नहीं उठाने हैं काम पे, बट ऐसा स्ट्रेंथ जो उनके डायरेक्टली रोल के साथ ही ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल है, वो स्ट्रेंथ आगे लगे। एंड सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पर अगर आप बिल्कुल भावनाओं में बह के सब कुछ बता दोगे तो वो थेरेपिस्ट नहीं है आपका। यू हैव टू बी क्वाइट स्मार्ट अबाउट योर वीकनेसेस। ओके, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन आइडिया। सब नहीं ये यूज करेंगे क्योंकि उनको पता चल जाएगा सब ये सोच के आए। If interviewer says, what are your weakness? What do you think is your weakness that you need to overcome? So a candidate might say, sir, I think I am a perfectionist. I don't leave anything until it's done. Sometimes it causes me a lot of pain or a lot of time, and I get too focused about it, and I don't leave it until it's like fully done. I'm trying to get over it because I want कि हर चीज perfection से नहीं हो सकती. You gave your weakness, which was not entirely a weakness, but you know now this can be used as a strength. Are you getting my point? You need to be a little manipulative, little hidden in this way. How do you handle time management and prioritize tasks? They want to know आपकी time management skills और आपकी prioritizing skills कैसी है। पूरा दिन PUBG पे टाइम वेस्ट कर रहे हो या सोशल मीडिया पे, इन आंसर्स से ही उनको आइडिया लग जाएगा। डायरेक्टली आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि सोशल मीडिया में कितनी देर तक बैठते हो, वो नहीं, आपको उनको पता है आपने झूठा आंसर देना है, 1 घंटा आधा घंटा, ज्यादा नहीं करते। बट अदर क्वेश्चंस विल गिव यू एन आइडिया how good of a candidate you are. Yes, this question. Describe a situation where you work collaboratively with a team to achieve a common goal. ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप टीम प्लेयर हैं या नहीं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यू आर नॉट वर्किंग अलोन। आपको ज्यादातर टीम्स असाइन होती है, कभी कभी आप टीम लीडर भी बनते हैं, पर क्या आप दूसरे लोगों के साथ काम कर सकते हैं? इफ यू हैव अ पर्सनालिटी जो दूसरों के साथ काम नहीं कर सकता, वो ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं ज्यादातर चूज होते हैं, क्योंकि आइसोलेटेड वाला काम है ही नहीं है वहाँ, टीम वर्क। तो आपको इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट क्या है, ये भी एक अच्छा आंसर होता है टू मेक देम नो। अब अकम्पलिशमेंट आपका एकेडमिक हो, स्पोर्ट्स आप खेलते हो उसमें हो, डजंट मैटर, बट ये बताना चाहते हैं कि आप किस चीज को अकम्पलिशमेंट मानते हैं। आज मैंने इस गेम में ये ट्रॉफी जीत ली, ये गन जीत ली, नहीं, वो अकम्पलिशमेंट नहीं है। बट जनरली लाइफ में आपको लगा कि वेयर यू फेल प्राउड ऑफ योरसेल्फ फॉर एनीथिंग, वो अकम्पलिशमेंट वो सुनना चाहते हैं कि आप किस फ्रेमवर्क से काम कर रहे हैं। 8th one, आर यू अपडेटेड ऑन द इंडस्ट्री ट्रेंड? आप जिस इंडस्ट्री में हैं या इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आपको वहाँ का ट्रेंड पता है? सिविल वालों को अपने इंडस्ट्री में करंटली क्या चल रहा है पता होना चाहिए। CS तो नीड टू नो एवरीथिंग, व्हाट इज हैपनिंग इन AI, व्हाट इज हैपनिंग इन मशीन लर्निंग, यू नीड टू नो एवरीथिंग। आपको अपने इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में डे आफ्टर टुमारो आई एम होपिंग कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ चीजें आप समझ जाएंगे। मैं रिपोर्ट लूंगी आपके टीचर से कि कुछ फर्क पड़ा या वही सेम ओल्ड चीजें की हैं। तो प्लीज प्रिपेयर वेल,
रिसर्च कीजिए कंपनी को एंड अपने रोल को रिसर्च कीजिए. अगर नहीं पता है तो प्लीज आस्क योर टीचर्स, दे लेट यू नो. घर में जाके आधा घंटा ही सही पर अपना गूगल खोलकर वो कंपनी और रोल के बारे में पढ़िए. अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, ये सिस्टम में है गाइस. ये पीपीटी जो है ये सिस्टम में ऑलरेडी है. नीरज सर से आप ले सकते हैं. उसमें क्वेश्चन और ड्रेस कोड वगैरह सब है. इफ यू वांट टू टेक इट, कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों के लिए बनाई है. ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी.